Tantra एवं विधि वैद्य. I welcome you all in Ayush Vibodhini webinar series on the behalf of Shrimati Urmila Devi Ayurvedic College, Hoshiarpur. I am thoroughly pleased to witness you all here. Next, I welcome Engineer Amarjit Singh Walia, the Honorable Chairperson of our college, Principal Dr. Meenakshi Nath, Vice Principal Dr. Mridu Sharma, and Resource Person Dr. Deepika Bhandari. You all are the backbone of this event. Thank you, ma'am. Also, I heartily welcome today's guest speaker, Dr. Deepti Negi, and equally thanks her for showing her presence. As Ayush Vibodhini series has come to its final stage, and this journey has wonderful and successful because of few people who took part in this in spite of your busy schedule. I hope our upcoming series will get similar success. Now, I request Principal Ma'am to address the gathering with her valuable words. Over to you, ma'am. Thank you, Dr. Anupama. Good afternoon and welcome all of you sharing the platform of Ayush Vibodhini Series 3. We really are fortunate that our Ayush Vibodhini series is graced every day with eminent speakers from all over India. And today also we have Dr. Deepti Negi from Devbhoomi College of Ayurveda, Dehradun. And the topic which she is going to share with us is also very important and very much critical in modern times. The lifestyle which we have opted due to so many reasons is putting our life at risk. The so-called energy bars, energy drinks, fizzy drinks, sweets, chocolates, all these processed foods are driving up the rate of associated problems. Added sugars and added salts are producing harmful synergistic effects. And this all we can deal under Dushivish in Ayurveda. These lesser potency toxins are really harmful to body, and accumulation of these toxins is killing our body latently. So thank you very much, Dr. Deepti, for choosing such a wonderful and important topic. And we are very much sure that this topic will help us all in so many ways. Thank you again. Over to you, Dr. Anupama. Thank you, ma'am. Now let me introduce you all to our guest speaker, Dr. Deepti Negi. Deepti Negi is currently working as Assistant Professor in Devbhoomi Medical College of Ayurveda, Dehradun. She has done her PG from Rishikul Ayurvedic Government College, Haridwar. She has more than 15 publications in national or international journal. She attended nearly 10 workshops and has done 12 papers of present. The topic of today's webinar is Dushivish, a cumulative poison or food pollution. So let's start today's sessions. Dr. Deepti, you are requested to please start. Over to you, ma'am. First, thank you, Dr. Anupama. And thank you, Principal Ma'am. Now, firstly, I would like to thank Honorable Chairman, Sir, Mr. Amarjit Singh Walia, respected Principal Ma'am, Dr. Meenakshi Nath, and respected Vice Principal, Sir, Dr. Mridu Sharma, and Resource Person, Dr. Deepika Bhandari Ma'am, and all the faculty members and organizing committee of Agatan department, especially Dr. Anupama Kumari, and all the students of Srimati Urmila Devi Ayurvedic College of Medical Sciences and Hospital. We all are blessed that we are the family or we are the part of this Ayurveda family. And it's my privilege that I am sharing or I'm presenting my presentation on this platform. So let me start our presentation. The topic is Dushivish, accumulative poison and food pollution. ये टॉपिक मैंने इसलिए लिया है, स्पेशली ये बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो अभी की जनरेशन है वो जो प्रोसेस्ड फूड होता है या फास्ट फूड होता है उसके लिए बहुत इंटरेस्टेड रहती है, तो इसी वजह से मैंने ये टॉपिक लिया था।
तो जो ये टॉपिक है ये आज के करंट टाइम की वजह से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि जो धीरे धीरे हमारा लाइफ स्टाइल है वो धीरे धीरे चेंज होता चला गया है। और लाइफ स्टाइल आज इतना चेंज होता चला गया है कि हमारे जो खाने में हम जो फूड न्यूट्रिशन के रूप में लेते थे वो आज एक पॉइजन के रूप में हम ले रहे हैं, जो कि हमें पता चलता नहीं है। चाहे वो अननोइंगली है, उसमें हमें कंफर्म नहीं होता है कि हम जो ले रहे हैं वो हमारे लिए हार्मफुल होगा या नहीं, लेकिन ये हमारे लिए किस तरीके से हार्मफुल है ये मैं आपको इस प्रेजेंटेशन में बताऊंगी। सबसे पहले जब भी हम बात करते हैं विष की, तो आयुर्वेद में विष का किस तरीके से वर्णन किया गया है, विष को क्या कहा गया है। तो सबसे पहले जो आचार्य सुश्रुत है, आचार्य सुश्रुत जी कहते हैं विषाद जनन त्वाच विषम इत्य अभिधीयते। इसका अर्थ यह है। मैम स्लाइड शेयर नहीं। अच्छा, एक मिनट। अब हुई स्लाइड शेयर डॉक्टर अनुपमा? मैम नो मैम, अभी नहीं हुई। अभी भी नहीं हुई? अब हुई मैम? हेलो, हाँ जी मैम, अभी नहीं हुई मैम। मैं ना धीरे धीरे बोल रही हूँ ना, उसकी आवाज़ें आ रही हैं। Ma'am, you kindly send it on mail. We will start the slide. ओके ओके मैम। Okay.
Is it visible now? No, not yet. No. No, is it visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. You can start now. सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। सो जो ये टॉपिक है, ये मेनली जो टॉपिक मैंने लिया था, ये स्पेशली बच्चों के लिए लिया था कि बच्चे, क्योंकि आजकल के टाइम पे जो जनरेशन है, इसमें ज्यादातर जो हम लोग लेते हैं ये प्रोसेस्ड फूड लेते हैं। प्रोसेस्ड फूड में भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे फास्ट फूड है। फास्ट फूड में क्या है कि हम जो आजकल के टाइम पे जो हम फास्ट फूड लेते हैं, कि हम टाइम, चाहे हम टाइम को बचाने के लिए ले रहे हो, चाहे हम अपने टेस्ट के लिए ले रहे हो, ये सारी चीजें हम यूज करते हैं। ठीक है, तो अब पहले, सबसे पहले जो स्टार्टिंग है वो है विष। विष को आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला है? विष को आचार्य सुश्रुत ने बोला है विषाद जनन त्वाच विषम इत्यभिधीयते। इसका अर्थ ये है कि विष उसे कहा जाता है जो मन एवं शरीर को विषाद यानी दुख से भर दे। ठीक है, तो यहाँ पे दुख का मतलब क्या है? यहाँ दुख का मतलब कोई वैसा दुख नहीं है। यहाँ पे दुख का मतलब है कि जो कि हमारी कोई डिजीज बॉडी में आ जाती है, या कोई सिम्टम आ रहा है, जैसे पेन हो रहा है, फीवर हो रहा है, इस तरीके का कोई भी चीज अगर हमारी बॉडी या मन दोनों में आ जाता है, तो उसको हम विष कहते हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर ने नेक्स्ट डेफिनेशन दी है, जगत विषम तत् दृष्टाम तेन आशु विसंज्ञता। इसका अर्थ यह है कि जिसको देखने मात्र से ही प्राणी विषाद से भर जाता है, उसे विष कहते हैं। तो देखने मात्र से ही पहले के समय में तो शायद हो सकता है, जैसे किसी ने सांप को देख लिया तो वो एकदम भय से डर जाता था, तो वो भय से जो उसकी बॉडी में दोष कुपित होते थे, तो उसको ये विष कहा जाता था। ठीक है ना। तो नेक्स्ट जो स्लाइड है वो है पॉइजन। ये डोरलाइन मेडिकल डिक्शनरी में बताया गया है इसकी डेफिनेशन, कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसको हम इनटेक कर रहे हैं, या इनहेल कर रहे हैं, या एब्जॉर्ब कर रहे हैं, या अप्लाई कर रहे हैं, या फिर इंजेक्ट कर रहे हैं, मतलब हम किसी भी रूट से ले रहे हैं, वो हमारी बॉडी में जाकर के कोई भी ऐसी इंजरी या फिजिक को अपने केमिकल एक्शन से हमारी बॉडी में कोई भी डिस्टर्बेंस ला रहा है, उसे हम पॉइजन कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड, दूषी विष। दूषी विष, अब आपने आयुर्वेद में सबने, अभी जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट होंगे उन्होंने दूषी विष के बारे में पढ़ा भी होगा, और जो अब नेक्स्ट बच्चे आएंगे वो भी दूषी विष के बारे में पढ़ेंगे। इसीलिए मैंने दूषी विष को ज्यादा यहाँ पे ज्यादा वो नहीं किया है, लेकिन मैं थोड़ा बहुत उसकी परिभाषा बताते हुए आपको बताती चली जाऊंगी कि दूषी विष किसे कहते हैं। तो दूषितम देश काल अन्य दिवा स्वप्न अभिक्षणेशु यस्मात् दूषेत धातु तस्मात् दूषी विषम स्मृतम। दूषी विष किसे कहते हैं? जो देश यानी जो हैबिटेट है, जहां पे इंसान रह रहा है, काल यानी समय के अनुसार, ठीक है, काल, दिवा स्वप्न और अन्न, इनको बार बार दूषित, जो ये दूषित होता है, अगर हैबिटेट है वो आपके अकॉर्डिंग नहीं है, गंदा है, जो समय चल रहा है, आपने रात के समय कोई भारी खाना खा लिया, ऐसा खाना खा लिया जो डाइजेस्ट प्रॉपरली नहीं हो सकता, या फिर ऐसा अन्न जिसमें बैक्टीरिया है, या जिसमें जो खराब हो चुका है, ऐसा खाना आपने खा लिया, और दिवा स्वप्न यानी दिन में बार बार सोने से। तो ये जब चीजें बार बार आप करेंगे, तो जो आपके शरीर की धातुएं हैं उन्हें दूषित करेंगे, तो इसे हम दूषी विष कहते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन जो सुश्रुत ने बताई है, सुश्रुत ने वो बताई है कि यत स्थावरम जांगम कृत्रिमम वा देहाद अवशेषम यत निर्गतम तत् जीर्ण विषग्न औषधि अभिहर्तम वा दावा अग्नि वाता तत् शोषितम वा स्वभावतो वा गुण विप्रहीनम विप्रम ही दूषी विषताम विषम ही दूषी विषताम वीर्य अल्प भावान्नम निपात वर्ष गणानुबंधम। इसका मतलब यह है कि कोई भी प्लांट से रिलेटेड हो या एनिमल से रिलेटेड हो, कृत्रिम में आजकल के उसमें जितने भी मेटल्स होती हैं, या कोई भी पेस्टिसाइड है, या आज के उसमें जो अभी मैं फूड पोल्यूशन में आपको बताऊंगी, वो जो सारी चीजें हैं वो कृत्रिम में आ जाएंगी। ये क्या करते हैं कि जब देह में अवशेष रूप में रह जाते हैं, किसकी वजह से अवशेष रूप में किस वजह से रहेंगे, कि अगर हमने ऐसी औषधियां ली है जो विषग्न औषधियां हैं, तो वो क्या करेंगी, इनको वो खत्म तो करेंगी, लेकिन जड़ से अगर खत्म नहीं कर पाती है, तो ये बॉडी में कुछ मात्रा में रह जाता है, जो कि यहाँ पे दावा अग्नि बोला गया है, यानी वन की अग्नि को।
लेकिन वन की अग्नि से ना लेकर के मैं इसे जठराग्नि से लेती हूँ कि अगर कोई जठराग्नि है वो इतनी तीव्र है कि वो किसी विष को पचा तो लेती है, लेकिन वो उसको पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, उसका कुछ अंश बॉडी में रह जाता है, तो उसको हम दूषित विष कहते हैं। ठीक है ना। तो और इसमें ये भी है कि कफ के आवर्त होने से, कफ के आवर्त होने के कारण क्या है, इसका डाइजेशन स्लो हो जाएगा और कफ के आवर्त होने से ये सालों साल तक बॉडी में पड़ा रहता है, जिसको मैं आगे अच्छे से डिफाइन करूंगी कि कैसे। नेक्स्ट आता है फिर दूषित विष को अगर मॉडर्न टर्म में हम कैसे वो करेंगे, तो ये जितने भी पॉइजन है, जो भी लो पोटेंसी वाले पॉइजन है, उनको ये कवर करता है। जितने भी टॉक्सिन्स आते हैं, चाहे वो हमारे फूड रिलेटेड हो, चाहे वो सच में ही जो पॉइजन है उनसे रिलेटेड हो, लेकिन वो लॉन्ग एक्टिंग हो, मतलब वो उस समय एकदम से वर्क ना कर रहे हो, उनकी क्रोनिकली वो वर्क करके हमारी बॉडी को हार्म पहुंचा रहे हो। ठीक है। और कैसे हार्म पहुंचाते हैं ये, जो नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग क्रोनिक इफेक्ट्स आर जनरली आउटशैडोड। ये मैं बच्चों एग्जांपल भी दूंगी आपको। मेरे पास एक पेशेंट आया था जिसको एनीमिया था। मैंने बहुत कोशिश की कि मैंने एनीमिया को हटाने की कोशिश की कि किसी तरीके से जो ब्लड है वो प्रॉपरली बनना शुरू हो जाए और वो एनीमिया की जो कंडीशन है वो हट जाए, लेकिन हुआ नहीं। तो बाद में धीरे धीरे करके जब उसके सारे टेस्ट निकाले गए, एक्सरे रिपोर्ट आई, रेडियोलॉजी वाली रिपोर्ट, तो तब पता चला कि उसे लेड पॉइजनिंग थी। तो जो टॉक्सिन्स जिनकी पोटेंसी कम हो जाती है, उनकी वजह से जो भी मतलब टॉक्सिसिटी आती है जो क्रोनिक टाइम तक, उसको हम दूषित विष कहते हैं। और इसमें क्या होता है, जो एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है और एक्यूमुलेशन होता रहता है। वो बॉडी से एक्सक्रीट नहीं होते हैं, जितनी मात्रा में वो हम उनको इनटेक कर रहे हैं उस मात्रा में वो बाहर नहीं निकलते हैं, तो इसीलिए वो ज्यादा एक्यूमुलेट होते हैं और धीरे धीरे वो क्रोनिक में जाकर के हमें पॉइजनिंग प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका डिफरेंट फॉर्म ऑफ दूषित विष। तो ये डिफरेंट फॉर्म है दूषित विष के। इसमें सबसे पहला है फूड पोल्यूशन, नेक्स्ट है मेटल पॉइजन, नेक्स्ट है ऑक्यूपेशनल पॉइजन, नेक्स्ट है टॉक्सिक ब्यूटी इंग्रेडिएंट्स, एग्रीकल्चर पॉइजन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड सॉइल पोल्यूशन। तो सबसे पहले अभी मैं फूड पोल्यूशन को डिटेल में बताऊंगी, तो फूड पोल्यूशन को अभी रहने देते हैं। मेटल पॉइजन, मेटल पॉइजन क्या होता है कि कोई भी मेटल है जो बॉडी में एंटर हो रही है, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, लेड का बताया, तो ये कैसे जो हमारी बॉडी में इनटेक होती रहती है धीरे धीरे करके, तो ये बॉडी में जब इकट्ठी होने लगती है और एक्सक्रीट कम होती है, तो आगे जाकर के ये पॉइजनिंग क्रिएट करती है। ये मोस्टली जो पॉइजनिंग होती है ये लेड की होती है, आर्सेनिक की होती है, मरकरी की होती है, और आजकल आयरन की भी, आयरन और कॉपर, इन दोनों की भी पॉइजनिंग देखी जा रही है। नेक्स्ट आता है ऑक्यूपेशनल पॉइजन। ऑक्यूपेशनल पॉइजन, ऑक्यूपेशनल पॉइजन है कि अगर कोई किसी ऐसी फैक्ट्री में काम कर रहा है जहां पर कि कोई जैसे पेंट वाला काम होता है, या फिर कहीं पे पेस्टिसाइड डाले जा रहे हैं, जैसे फार्मर्स होते हैं वो पेस्टिसाइड डालते हैं, या फिर कोई लेड फैक्ट्री में काम कर रहा है, या मरकरी वाली फैक्ट्री में, जैसे आपका बीपी इंस्ट्रूमेंट है या फिर आपका थर्मामीटर है, ये जहां पे भी ये बनेगा वहां पे मरकरी वाला काम होगा। तो उन अगर देखा जाएगा तो लॉन्ग, कभी आफ्टर 10 और 12 ईयर में जो पॉइजनिंग होगी वो ऑक्यूपेशनल पॉइजनिंग कहलाएगी। फिर एक टर्म इसमें आता है टॉक्सिक ब्यूटी इंग्रेडिएंट्स। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल बच्चों अभी क्या हुआ था कि कुछ सालों पहले जॉनसन एंड जॉनसन पे यूएस की एक लेडी ने कंप्लेन की थी। उसने इल्जाम लगाया था कि जॉनसन और जॉनसन का जो टेल्कम पाउडर है उसकी वजह से उसको ओवेरियन कैंसर हुआ है। अभी अगर देखा जाए तो हम भी, अगर कोई नॉर्मल पर्सन है, वो आइडिया भी नहीं लगा सकता है कि ऐसे टेल्कम पाउडर से एक ओवेरियन कैंसर जैसी चीज हो सकती है। ठीक है ना। लेकिन ये कैंसर हुआ, तो ये कैसे हुआ? जब उसने ये इल्जाम लगाया, उसने बताया कि उसने 17 इयर्स तक ये जॉनसन ने जॉनसन बेबी का जो टेल्कम पाउडर है वो यूज किया था, और फिर जब रिसर्च की गई, और आप जब रिसर्च की तो बाद में पता चला कि उसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट थे जो ओवेरियन कैंसर कॉज कर सकते थे। तो तब जाकर के उस लेडी को उन्होंने जितना भी उसका हर्जाना बना था वो उसे दिया गया। नेक्स्ट आता है एग्रीकल्चर पॉइजन। एग्रीकल्चरल पॉइजन जो होता है, जैसे कोई भी किसान है वो अपनी जो भी क्रॉप होती है उसको, उसकी यील्ड को बढ़ाने के लिए उसमें पेस्टिसाइड डालते हैं, हर्बिसाइड डालते हैं, फर्टिलाइजर्स डालते हैं, ये सब तो वो डालते चले जाते हैं, लेकिन
जो हमें जो उसका आउटपुट मिल रहा है, जो फूड के रूप में हमें मिल रहा है, चाहे वो सब्जियों में मिल रहा है, चाहे वो हमें क्रॉप में मिल रहा है, वो कैसे भी मिल रहा है, वो बिल्कुल सही नहीं होता है, क्योंकि उसमें किसी ना किसी पार्ट में थोड़ा बहुत पेस्टिसाइड भी आ जाता है, थोड़ा बहुत उसमें फर्टिलाइजर के भी पार्ट्स आ जाते हैं, और इन हर्बिसाइड, वीडीसाइड, इनके भी पार्ट्स आ जाते हैं, जो कि हमारी बॉडी को धीरे धीरे हार्म कर रहा है। इसीलिए आजकल आपने मार्केट में भी देखा होगा, एक सब्जी आपको मिलेगी ऑर्गेनिक वेजिटेबल, जो कि ऑर्गेनिक खाद से बन रही है, और दूसरा आपको मिलेगा जो फर्टिलाइजर वगैरह से मिल रहा है। ठीक है, अब आता है एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड सॉइल पोल्यूशन। बच्चों, इसके बारे में आपको सभी लोगों को लगभग पता ही है, तो इसमें ज्यादा मैं जाऊंगी नहीं। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। ई कोड्स। अब बात करते हैं ई कोड्स की। तो अभी मैं जब आपको फूड पोल्यूशन बता रही हूँ, तो उसमें ई कोड्स को जानना बहुत जरूरी है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि आजकल के टाइम पे जब हमको पैक्ड फूड मिलता है, तो पैक्ड फूड में हम लोग, अब हर कोई इतना पढ़ा लिखा तो है ही कि वो उसके इंग्रेडिएंट देखता है कि इसमें क्या क्या पड़ा हुआ है ना। तो अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि अगर वो डायरेक्ट नाम से लिख देंगे तो लोग उसे खाना बंद कर देंगे या लोग उसे नहीं लेंगे, तो ये ई कोड्स के रूप में लिखा जाता है। ई कोड्स के रूप में ये इसलिए भी लिखा जाता है, अगर क्योंकि मैं अगर तंत्र और फॉरेंसिक से हूँ, तो इसमें मुझे ज्यादा इंटरेस्ट भी रहा है, और मैंने देखा भी है कि इन्होंने ई कोड्स क्यों वो किए। तो ई कोड्स इससे भी लिखे जाते हैं ताकि अगर सपोज कोई इंसान इसे खा लेता है, उसे पता चलता है बाद में कि ये इस फूड में ये मिक्स था, तो वो केस करेगा। तो केस करने पर उसके लिए, मतलब जो कंपनी है उसके पास एक सेफ्टी पॉइंट होता है, वो कहते हैं कि हमने ई कोड्स लिखे थे, जिसका आपको अगर पता नहीं है तो उसमें हमारी गलती नहीं है, आपको पता करना चाहिए था, क्योंकि हमने ऐसा कहीं नहीं कहा है कि ये नहीं लिखा गया है। तो ई कोड्स क्या है? ई कोड्स ये है कि ई कोड्स आर कोड्स समटाइम फाउंड ऑन फूड लेबल्स इन द यूरोपियन यूनियन। अब यूरोपियन यूनियन में कुछ कंट्रीज आते हैं, जिन कुछ कंट्रीज के मैंने नाम इसमें लिखे हुए हैं। नेक्स्ट आता है द कोड इंडिकेट्स एन इंग्रेडिएंट विच इज सम टाइप ऑफ फूड एडिटिव्स। द ई इंडिकेट्स दैट इज अ यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड फूड एडिटिव। ठीक है, तो इसमें कुछ फूड एडिटिव्स आते हैं जिनको हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, हाँ, ई कोड्स में आता है सबसे पहले। अब आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि E100 से शुरू होकर के E199 तक जो भी अभी तक मिलते हैं ई कोड्स, वो मिलते हैं कलरिंग एजेंट्स के लिए। ये अभी आगे आपको देखोगे कि E101 है तो वो किस कलर के लिए बोला गया है, E102 है तो वो किस कलर के लिए बोला गया है, तो ये कलरिंग एजेंट्स के लिए डिनोट किया जाता है। E200 से लेकर के 299 तक जो ई कोड्स दिए गए हैं वो प्रिजर्वेटिव्स के लिए दिए गए हैं। नेक्स्ट आता है E300 ई कोड्स जो दिए गए हैं वो एंटीऑक्सीडेंट के लिए दिए गए हैं। और E400 ये थिकनर के लिए दिया गया है, स्टेबलाइजर के लिए दिया गया है, ये जेलिंग एजेंट्स या इमल्सिफायर है, इन सब के लिए जो दिया गया है वो E400 से लेकर के 499 तक है। E500 जो है वो एजेंट्स फॉर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें आपके आ जाते हैं एंटी केकिंग एजेंट आ जाते हैं, और भी बहुत सारी चीजें आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है E600 है फ्लेवर इनहांसर, और फ्लेवर इनहांसर की बहुत बड़ी मतलब बहुत सारे हैं इसमें। तो ये इतने सारे हैं कि इनको आप जब पढ़ोगे, आप जब जानोगे, तो आपको पता चलेगा कि इसमें कई चीजें ऐसी हैं जो कि हम बिल्कुल अपने अगर नॉर्मल फूड में हम उसका इंटेक कभी नहीं करेंगे, लेकिन आप किसी भी तरीके से अनइंटेंशनली उन चीजों को लेते हैं अपने फूड में। नेक्स्ट स्लाइड। अब मैंने कुछ वो निकाले हैं इसमें से, जैसे ये जो शीशी बनी हुई है, अगर आप इसको इलाज करके देखेंगे तो इसमें E631 और E627 दिया है। तो अभी जैसे मैंने बताया आपको, जो 600 वाला है वो फ्लेवर इनहांसर का है ना। तो ऐसे ही जो लेस का पैकेट है, इसमें भी जो वो दिए गए हैं, फ्लेवर इनहांसर दिए गए हैं, वो 627 और 631 है। ठीक है, तो जो ये फ्लेवर इनहांसर है, मैंने जब इनके बारे में डिटेल में पढ़ा, तो जो ये फ्लेवर इनहांसर है मोस्टली एनिमल की चर्बी से बनते हैं,
अगर अभी तक किसी को पता शायद नहीं होगा, बच्चों में से भी काफी लोगों को नहीं पता होगा कि जो लेज है, लेज एक उसमें अगर देखा जाए तो हम वो ये नॉन वेज और वेज का साइन उसमें लगा होता है, ग्रीन मार्क लगा होता है जो कि वेज का साइन है, ठीक है ना। और इंडियन वाले लेज में मैंने मोस्टली देखा, और ये वाला जो लेज है ये इंडियन नहीं है, ये मैंने चेक किया था, तो ये इंडियन वाला नहीं है, क्योंकि इंडियन वाले में आपको ई कोड्स बहुत कम मिलते हैं, तो ये यहाँ का लेज नहीं है। लेकिन अगर कभी भी आप चेक करोगे और किसी में आपको ये ई कोड्स दिखते हैं तो आपको पता होना चाहिए। तो जो ये ई कोड 627 और 631 है, जो ये ई कोड्स है, ये एनिमल की चर्बी से मिलने वाले फ्लेवर है। लेकिन जब कंपनी पे इस चीज का दावा किया गया था कि ये जो आपने ई कोड्स लिखे हैं ये तो उसकी चर्बी है, एनिमल की चर्बी है, या फिर सुअर की, मेनली सुअर की चर्बी है, तो ये आपने कैसे इसको दे दिया। तो कंपनी का कहना था कि एक एल्गी होता है जिससे ये मोस्टली मिलता है, लेकिन एक रिसर्च दावा करती है कि वो एल्गी जो है वो अर्थ में इतना मिलता ही नहीं है जितना हमारा प्रोडक्शन होता है। तो जितने अमाउंट में हमारा प्रोडक्शन हो रहा है उतने अमाउंट में जब वो एल्गी मिल ही नहीं रहा है, तो हो सकता है इसमें एडल्ट्री की गई हो और एनिमल का जो फैट है वो उसमें मिक्स किया गया हो। नेक्स्ट स्लाइड। अब बच्चों आते हैं हम फूड पोल्यूशन पे। यही मेरा टॉपिक है मेनली, मेरा जो हुआ है ये मेनली फूड पोल्यूशन का ही है, कि फूड पोल्यूशन के बारे में हम सबको पता होना चाहिए कि फूड पोल्यूशन क्या है। ये टर्म जो है ये अभी न्यू आया है, पहले ये 10-12 साल पहले फूड पोल्यूशन वाला कोई टर्म होता ही नहीं था। पहले फूड पॉइजनिंग वाले टर्म्स आते थे जिसमें बैक्टीरियल या नॉन बैक्टीरियल का ही मेनली जिक्र होता था, लेकिन कुछ सालों से ये रेगुलरली उसमें आया है। और क्यों आया है? क्योंकि हम लोगों ने अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज किया है, और उस चेंजिंग लाइफ स्टाइल में हमने क्या किया है, प्रोसेस्ड फूड को एक अपने लाइफ में जगह दे दिया। प्रोसेस्ड फूड को प्रिफर भी किया है, जो कि या तो इजीली कुक्ड हो जाता है या फास्ट फूड होता है, ठीक है। और इसमें ये अब आप कहोगे कि भाई ये एडिटिव्स और ये क्यों, आप इनकी बातें क्यों कर रहे हो। मोस्टली जो फूड पोल्यूशन है वो इन्हीं की वजह से हो रहा है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन्हें इनटेक करें, अपने फूड में शामिल करें। इसके लिए इसमें आपके फूड एडिटिव्स मिलाए जाते हैं जो कि अच्छे हो, फूड अपीलिंग दिखे, कि आपको खाने का मन करे, तो इसीलिए इनको मिक्स किया जाता है। इसमें कुछ कुछ न्यूट्रिशन वैल्यू के नाम पे भी मिलाए जाते हैं। तो पढ़ते हैं ये क्या है। फूड पोल्यूशन डिफाइंड एज द प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक केमिकल and biological contaminants which are not naturally part of our food. Examples are preservative, taste enhancer, coloring agent, etc. In present time, our food is also contaminated by fertilizer, pesticide and heavy metals. अभी कुछ सालों पहले एक न्यूज आ रही थी जिसमें दिल्ली का दिखाया जा रहा था। जैसे दिल्ली में यमुना है, यमुना के किनारे वहां पर खेती की जाती है, मोस्टली वेजिटेबल की खेती की जाती है। तो वहां पर जो खेती की जा रही है, और यमुना में इंडस्ट्रियल जो वेस्ट होता है वो बहुत बह करके आता है, तो उसमें जो मैक्सिमम आती है लेड, आर्सेनिक, ये जो हैवी मेटल्स होते हैं हमारे, ये उसमें बह करके आते हैं। तो जब उन सब्जियों का टेस्ट हुआ, उन सब्जियों को देखा गया, तो हमारी जो ग्रीन वेजिटेबल्स थी उसमें एक हाई अमाउंट में आर्सेनिक और लेड मिले थे, ठीक है। तो आप कहोगे कि ये फर्टिलाइजर हो गए या पेस्टिसाइड हो गए, ये कैसे उसमें आ रहे हैं, हमारी वेजिटेबल में आ रहे हैं। तो जिस तरीके से ये हैवी मेटल्स आ रही है, उसी तरीके से पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर आ रहे हैं। आजकल आपने सुना भी होगा कि जो हेल्थ, जितने भी डॉक्टर्स होते हैं या जो हेल्थ वर्कर्स होते हैं, वो हमेशा कहते हैं कि आप जब भी कोई फ्रूट लेते हो या कोई सब्जी ले रहे हो तो उसको पानी में डिप रखो 10 मिनट तक, ताकि उसके भी जितने भी टॉक्सिक है वो हट जाए, ठीक है। अब आता है बात फूड एडिटिव्स की। तो फूड एडिटिव्स में क्या क्या चीजें हैं ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ। नेक्स्ट। पहले तो जरूरत क्यों है, ये फूड एडिटिव्स क्या हैं और क्यों इन्हें हम अपने खाने में ले रहे हैं। दे आर केमिकल्स और इंग्रेडिएंट्स which are added to food products for maintaining their stability. Additives are artificial or natural chemicals added to food for microbial and chemical stability of foods or delay or even stop food rancidity.
ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि ये और यहाँ पे नेचुरल वाले की बात कम होगी, नेचुरल जो फूड में होता ही है उसकी बात कम होगी। जैसे अगर बात करें उसकी लाइकोपिन, लाइकोपिन टमाटर में होता है, वो एक कलरिंग एजेंट है, लेकिन यहाँ पे हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम उसकी बात क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि वो नेचुरल है, नेचुरल से इतना हार्मफुल इफेक्ट हमें नहीं आता है। जो हमें आर्टिफिशियल दिए जाते हैं हमारा हार्मफुल इफेक्ट उनसे आता है। तो यहाँ पे जो मेनली बात होगी वो आर्टिफिशियल केमिकल्स की ही होगी। तो ये वो केमिकल्स हैं जो हमारे फूड की स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं। अब स्टेबिलिटी को कैसे बढ़ाते हैं? जो प्रिजर्वेटिव है वो उसको प्रिजर्व करके काफी टाइम तक रखेगा, क्योंकि उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं होने देगा, जिससे वो आगे तक चलेगा। ठीक है, और डेंसिटी से बचाते हैं या फिर हमारे जो फूड अपीलिंग है उसको बढ़ाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ फूड एडिटिव्स। तो इनके फंक्शन क्या है? इंप्रूव द टेस्ट और अपीयरेंस ऑफ अ प्रोसेस्ड फूड। ये जो वो है प्रोसेस्ड फूड है, ये क्या करता है कि उसके अपीयरेंस को ठीक करता है। अपीयरेंस को कैसे ठीक करता है? अब जैसे इसमें मैंने एग्जांपल लिया है, जो ये सल्फर डाइऑक्साइड है ये ऐड किया जाता है। नहीं नहीं, पीछे करना, पीछे, पीछे वाली स्लाइड, प्रीवियस स्लाइड। इसमें जो ये फूड कैसे, मतलब इसको जो ये अपीयरेंस है इसको कैसे ये इम्प्रूव करेगा? तो इसमें मैंने जो एग्जांपल दिया है आपको बी वैक्स का। बी वैक्स क्या करता है कि जब एप्पल में कोटिंग होती है, अब आप जो भी एप्पल खाओगे एक बार नोटिस करना, जो कि कोल्ड स्टोरेज वाले होंगे, जो कि अभी के टाइम पे नहीं, इस समय सीजन चल रहा है, इस समय तो आपको नेचुरल भी मिल जाएगा, लेकिन जब सीजन चला जाएगा एप्पल का तो आप खुद ट्राई करना है इसको, कि आप जब उसके ऊपर से हल्का सा किसी चाकू से या उससे थोड़ा सा ऐसे पील करके देखोगे तो उसमें आपको बी वैक्स दिखेगी, आपको एक लेयर सी दिखेगी जो बी वैक्स की होती है। तो ये ग्लेजिंग एजेंट की तरह काम करता है, जिससे वो और अट्रैक्टिव लगते हैं जो एप्पल्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इंप्रूव द कीपिंग क्वालिटी और स्टेबिलिटी ऑफ अ फूड। ये मैंने आपको बता दिया है कि माइक्रोबियल ग्रोथ को वो नहीं होने देते हैं, उसमें मॉइस्चर लेवल कम करेंगे तो ये इस तरीके से वो काफी टाइम तक स्टेबल रहेगा। नेक्स्ट स्लाइड। इम्प्रूव शेल्फ लाइफ और शॉर्टेज टाइम। ठीक है, सेम ऐसी मैंने अभी जो बताया था वो भी यही है कि सल्फर डाइऑक्साइड को हम उसमें ऐड करेंगे सॉसेज और मीट में, जो कि अवॉइड करता है माइक्रोबियल ग्रोथ को, जिसकी वजह से वो लंबे टाइम तक रह सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। इफेक्ट ऑफ फूड पोल्यूशन, फूड एडिटिव्स। तो अगर देखा जाए कि इसके जो इफेक्ट्स आते हैं, तो इफेक्ट्स कैसे कैसे आते हैं? एक तो बच्चों, पहले मैं एक चीज और आप लोगों को क्लियर करूं, जो फंक्शन है फूड एडिटिव्स का, तो ये इसलिए भी होता है कि आपने देखा होगा कि कोई चिप्स होता है या फास्ट फूड होता है, वो आपका अगर फेवरेट होगा तो जब भी आप उसे देखेंगे तो आपके अंदर एक क्रेविंग अपने आप होगी उसको खाने की। अगर कोई बच्चा बहुत ज्यादा सॉफ्ट ड्रिंक पीता है या कोई बहुत ज्यादा चिप्स लेता है, तो पक्का डेफिनेट है जिस दिन वो नहीं लेगा उसको अपने आप ही उस चीज की क्रेविंग होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आपको रोटी या सब्जी या चावल के लिए क्रेविंग नहीं होती है, जिस तरीके की क्रेविंग आपके लिए आपको इन सब चीजों के लिए होगी। ठीक है, तो इसका कारण क्या है कि ये एडिटिव्स है जो कि हमारी एक तरीके से ब्रेन मैपिंग कर लेते हैं और ये आपको सिग्नल देते हैं। जैसे आपने इनको देखा तो ये एक सिग्नल आपके माइंड में आता है कि आपको ये फूड इंटेक करना ही करना है। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ फूड एडिटिव्स, तो इसके इमीडिएट इफेक्ट्स कौन कौन से आते हैं, इसका मैं अभी आपको एक रियल उसमें एग्जांपल भी दूंगी, क्योंकि कुछ टाइम पहले ही मेरे पास पेशेंट आया था, तो उसका मैं आपको एग्जांपल अभी दूंगी। तो इमीडिएट इफेक्ट्स में देखिए, हेडेक, अल्टरेशन इन मेंटल कंसंट्रेशन, बिहेवियरल चेंजेस और इम्यून रिस्पॉन्स। ये सबको पता है, मैक्सिमम लोगों को आजकल इस तरीके की समस्याएं हो रही हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट में क्या है? इंक्रीज रिस्क ऑफ कैंसर, कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड अदर डिजेनरेटिव कंडीशंस। ये भी मैक्सिमम लोगों में आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। प्रिजर्वेटिव्स। अब आपका बात करते हैं हम जब प्रिजर्वेटिव की, तो प्रिजर्वेटिव क्या क्या करते हैं ये वैसे हम एडिटिव्स में हम थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। द प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ
food due to fungi, bacteria, and other microorganisms. The intention is generally to preserve the natural characteristic of food, to increase the shelf life of food, increase microbial and chemical stability of food, or delay or even stop food rancidity. Commonly used in low-fat spread, cheese, mayonnaise, bakery products, dried fruit preparations. ठीक है, इसके एग्जांपल ये हैं। तो आपने देख लिया प्रिजर्वेटिव ये सारी चीजों से उसको प्रिजर्व करेगा। तो प्रिजर्वेटिव में कौन कौन सी चीजें आ रही है? सोडियम बेंजोएट, इसका मैं आपको अभी इफेक्ट बताऊंगी क्या क्या बॉडी पे आ रहा है। सोडियम नाइट्राइट, बेंजोइक एसिड और BHA। BHA आजकल बहुत ज्यादा यूज होता है, BHT और BHA आजकल बहुत ज्यादा यूज होता है। नेक्स्ट स्लाइड। अब बच्चों बात आती है सोडियम बेंजोएट की। जो ये सोडियम बेंजोएट है ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में आ रहा है, पिकल्स में आता है, सॉसेस में आता है। और ये क्या चीजें करता है? तो कोई भी ऐसी चीज है जो कि हमारी एलर्जी से रिलेटेड है तो वो ये उसको एग्रीवेट करता है। जैसे अस्थमा हो गया है, ठीक है, ये कार्सिनोजन भी है तो कैंसर भी कॉज करता है और फीटल एबनॉर्मेलिटी भी ये कॉज करता है। फिर आता है सोडियम नाइट्राइट एंड नाइट्रेट। इसमें ये जो मिलता है ये मिलता है सॉसेज में, हॉट डॉग्स में, स्मोक्ड फिश में। अब केवल ये जैसे बच्चों यहाँ पे बताया गया है, पीछे पीछे स्लाइड करना, जो ये नाइट्राइट का बताया गया है, सोडियम नाइट्राइट का, तो ये जैसे हॉट डॉग में बताया गया है तो इसका मतलब ये नहीं है केवल हॉट डॉग में। जितने भी आपको ब्रेड वाले, जितने भी आपको ब्रेड वाली चीजें मिलेंगी जो कि हमको थोड़े लंबे टाइम तक रखनी होती है, जैसे मार्केट में पैक्ड सैंडविच आते हैं, मार्केट में पैक्ड पिज्जा वगैरह आते हैं, तो ये चीज अगर हमको थोड़ा लंबे टाइम तक रखने हैं तो उसमें ये सोडियम नाइट्राइट और नाइट्रेट दोनों पड़ते हैं, ठीक है। और ये भी कार्सिनोजन है। तो आजकल अगर देखा जाए कि कैंसर का रेट क्यों बढ़ रहा है, तो कैंसर का रेट बढ़ने का कारण एक हमारा ये प्रोसेस्ड फूड भी है। नेक्स्ट, बेंजोइक एसिड, ये ड्रिंक्स में होता है, लो शुगर प्रोडक्ट जो बोल करके बेचे जाते हैं उनमें होता है, सीरियल्स में होता है, मीट प्रोडक्ट्स में होता है। और इसमें जो डाइजेस्टिव एंजाइम फंक्शन है वो इनहिबिट हो जाता है, जिसकी वजह से डाइजेस्टिव रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो प्रोड्यूस होने लगती है। नेक्स्ट आता है BHA, ये पोटैटो चिप्स में होता है, सबसे ज्यादा यूज हो रहा है आजकल के टाइम पे, और इसके साइड इफेक्ट्स भी सबसे ज्यादा है। मे बी कार्सिनोजेनिक, एक मैंने इसका साइड इफेक्ट लिखा नहीं है, एक्चुअली वो मुझे मिला था, वो मैंने इसमें लिखा नहीं है, तो क्योंकि वो केवल मैंने ही नोटिस किया था इसलिए मैंने अभी इसमें डाला नहीं है। उसमें क्या हुआ था कि एक मेरे पास एक लेडी आई थी जो कि बहुत ये पोटैटो चिप्स वगैरह बहुत ज्यादा लेती थी, तो उसके हाथों और पैरों में बर्निंग थी, ठीक है। तो आयुर्वेदा के उससे देखा जाए बच्चों तो मैं उसको ट्रीटमेंट पित्त शामक दे रही थी, लेकिन तब भी कुछ नहीं हो रहा था। जब नहीं हो रहा था तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मुझसे बाद में आकर के ये बात बताई कि वो ये वाली चीजें ज्यादा इंटेक करती है। तो जब ये वाली चीजें ज्यादा इंटेक वाली चीजें आई थी तो मैंने उनको कहा कि आप इस चीज को रोक दो। तो कम से कम 2-3 महीने उन्होंने जब इनको रोका तो उनका जो बर्निंग वाला चीज थी, हाथ और पैरों वाली बर्निंग, वो बिल्कुल खत्म हो गई, ठीक है। तो ये ज्यादातर ये जो प्रिजर्वेटिव है इनकी वजह से भी बहुत सारी डिजीज हो रही है। नेक्स्ट स्लाइड। ये है, ये देखिए इसमें आता है अब आपके जो एडिटिव्स हैं, ये फूड एडिटिव्स, लेकिन ये वाले जो है 200 से शुरू हो रहे हैं, तो ये प्रिजर्वेटिव्स हैं, ठीक है। तो आप लोग खुद ही इनको पढ़ लेना, ये मैंने स्लाइड आप लोगों के मैम लोगों को शेयर किए, तो आप उनसे लेकर के ये एक बार अपने आप भी पढ़ लेना, आप लोगों के लिए काफी इंफॉर्मेशन मिलेगी इन साइट से, तो ये आप एक बार खुद से देख लेना। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। कलर एडिटिव्स। अब आपको अगर मैं एडिटिव्स की बात, ये कलर एडिटिव्स की बात करूं, तो जब भी आप फूड को देखते हो तो वो देखने में अच्छा लगना चाहिए। अगर वो अच्छा लग रहा है तो आपका खुद से उसे खाने का मन करेगा, ठीक है ना। अगर सपोज आपको प्लेन राइस दिया जाए और एक तरफ राइस रखा जाए जिसमें थोड़े से मटर हो, थोड़े से बीन्स हो, थोड़ी सी गाजर पड़ी हो, तो वो कलरफुल सा दिखेगा, तो आपका अपने आप ही उसे खाने का मन करेगा। तो इसीलिए ये जो कलर एडिटिव्स है ये मिलाए जाते हैं,
ठीक है, तो पढ़ते हैं कलर एडिटिव्स किसे कहते हैं। फूड डाइज आर केमिकल सब्सटेंस दैट वर डेवलप्ड टू enhance the appearance of food by giving it artificial color, make the food look appealing and so taste better, make the food look appealing and so taste better, सॉरी ये डबल बार ये लाइन रिपीट हो चुकी है। These are described as one of the most dangerous additives, ठीक है। और अभी इसमें एक आर्टिकल भी वो हुआ है, पब्लिश हुआ है, जिसमें जो ये कलर एडिटिव्स है उनकी जितने भी हार्मफुल इफेक्ट है वो अलग अलग कलर के साथ उसको डिस्क्राइब किए हुए हैं। तो आप अगर चाहें तो उसमें उस आर्टिकल में जाकर के उसको डिटेल में पढ़ना, आपको पता चलेगा कि ये कितने हार्मफुल है। नेक्स्ट स्लाइड। अब ये कलर बेवरेजेस कहाँ, ये कलर जो वो है एडिटिव्स हैं वो कहाँ कहाँ यूज होते हैं, तो ये कलर बेवरेजेस में यूज होते हैं, डेजर्ट पाउडर्स में यूज होते हैं, आइसक्रीम में यूज होते हैं, या कस्टर्ड्स में यूज होते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं। आजकल कलर्स आते हैं, आपने देखा होगा ऑरेंज कलर आता है। पहले क्या होता था, जैसे अगर रेस्टोरेंट में जाते थे आप, तो वहाँ आप पनीर खा रहे हो, अगर आप वहाँ पे शाही पनीर खा रहे हो तो जो उसकी ग्रेवी होती थी वो आपके ड्राई फ्रूट से या फिर टमाटर से, इन सब चीजों से बनी होती थी। लेकिन आज के टाइम में वो ग्रेवी इतनी अच्छी नहीं होती है, उसमें कलर डाल करके उसको पूरा कलरफुल करके दे दिया जाता है, लेकिन वो ग्रेवी में जो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो बिल्कुल जीरो होती है। ठीक है, तो कभी भी आप रेस्टोरेंट जाओ तो खाने से पहले ये सब चीजें सोचना। ये क्या क्या कॉज कर सकता है, तो जितने भी एलर्जी वाली कंडीशंस है, जैसे स्किन हो गया, या फिर अस्थमा वाली है, या हाइपर एक्टिविटी है कोई भी बॉडी में जो हो रही है, कैंसर है, ये सब ये कॉज करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। और ये है, अब आपको मैंने बताया था 100 से शुरू हो जाते हैं कलर्स, तो ये कलर्स जो शुरू हो रहे हैं इसमें जो रेड है वो, इसमें मैंने उसके इफेक्ट्स और यूजेस दोनों दिए हुए हैं, तो वो इसलिए लगाई गई है। तो ये E128 जो है वो रेड कलर के लिए है, E133 जो है वो ब्रिलियंट ब्लू के लिए है। इसी तरीके से आगे की भी और कलर दे रखे, तो आप इसके हार्मफुल इफेक्ट भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस चीज को जानें, क्योंकि जब आप इन चीजों को जानोगे तो आपको आगे ट्रीटमेंट में भी प्रॉपर हेल्प मिलेगी। इसलिए हेल्प मिलेगी क्योंकि आजकल का जो लाइफ स्टाइल है वो इन्हीं सब चीजों पे डिपेंड हो चुका है। नेक्स्ट स्लाइड। फूड फ्लेवर और फूड इनहांसर। फूड फ्लेवर्स, अभी जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि फूड फ्लेवर्स क्या है और फूड इनहांसर, ये फ्लेवर इनहांसर क्या है, कि जो फूड में आपके टेस्ट को बढ़ा देते हैं। सबसे ज्यादा जो क्रेविंग करवाते हैं वो फ्लेवर इनहांसर ही करवाते हैं। अगर मैं आपको बात करूं इस समय, पिज्जा बोलूं, तो आपके दिमाग में जिन लोगों ने पहले से ही पिज्जा खाया होगा उसका टेस्ट अपने आप ही आपके ब्रेन में अभी एकदम से स्ट्राइक कर जाएगा, है ना। या मैं अगर आपको पोटैटो चिप्स वो भी लेज वाले बोलूं तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा उसका टेस्ट। तो जो फ्लेवर इनहांसर है या फूड फ्लेवर है, यही एक तरीके की ब्रेन मैपिंग करते हैं। इन्हीं की वजह से हमारे जो ब्रेन है उसमें वो जो इनका टेस्ट है वो काफी लंबे टाइम तक रहता है, ठीक है। तो फ्लेवर इनहांसर ब्रिंग आउट द फ्लेवर इन फूड्स विदाउट imparting a flavor of their own। अच्छा, कई बच्चे जो स्क्वैश पीते होंगे, स्क्वैश में क्या होता है, एक आपका कलर एडिटिव होता है और दूसरा फ्लेवर इनहांसर या फूड फ्लेवर होता है, ठीक है। तो अब बताइए आपकी उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू कितनी है। वो केवल स्क्वैश है, वो आपका एक केवल पानी की वैल्यू होगी जो होगी, वरना उसमें जो कलर एडिटिव पड़ा है वो भी आपके लिए हार्मफुल है, और जो उसमें फ्लेवर पड़ा है, चाहे वो लेमन फ्लेवर है, चाहे वो ऑरेंज फ्लेवर है, चाहे वो गुआवा फ्लेवर है, वो कोई भी फ्लेवर है, तो वो आपके लिए हार्मफुल है। और जो मैंने इसका एग्जांपल दिया है मोनोसोडियम ग्लूटामेट, ये आजकल इतना ज्यादा यूज होता है, ये आपके चाउमीन में यूज होता है, ये आपका जिसको आप लोग अजीनोमोटो कहते हैं, ठीक है, ये बहुत ज्यादा यूज होता है सॉरी, ये बहुत ज्यादा यूज होता है। तो ये जब यूज हो रहा है तो इसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या है। लेडीज को जो मैंने वो किया, हाईलाइट भी कर रही हूँ उस चीज को। जो लेडीज हैं, लेडीज के लिए मोस्टली जो प्रॉब्लम आ रही है, चाहे वो कंसीविंग में प्रॉब्लम आ रही है, चाहे वो थायराइड की प्रॉब्लम आ रही है, चाहे वो यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, वो ये मेनली जो उसका कारण है वो मोनोसोडियम ग्लूटामेट एक बड़ा कारण है। सारा कारण यही नहीं है, और भी बहुत सारे कारण है, लेकिन एक बड़ा कारण आजकल के टाइम पे ये भी है। नेक्स्ट है, फ्लेवर ऑफ सब्सटेंस आर नॉट यूनिफॉर्म एज दे वेरी
विद सीजन एंड एरिया ऑफ प्रोडक्शन। ये सबको पता है कि भाई अगर कोई भी चीज है वो आजकल, अब सपोज हमको माजा बेचना है, माजा बेचेंगे तो इतना आम तो मिल नहीं रहा है, हर सीजन में नहीं मिलेगा, तो जो वो माजा है उसमें क्या करते हैं हम फ्लेवर ऐड कर देते हैं, फ्लेवर ऐड करेंगे, कलर ऐड करेंगे, ये सब चीजें जब ऐड हो जाएंगी, प्रिजर्वेटिव ऐड करेंगे, तो अब आप देखो वो कितना हार्मफुल है, उसमें प्रिजर्वेटिव भी ऐड हो जा रहा है, उसमें आपका फ्लेवर फूड फ्लेवर भी ऐड हो जा रहा है, उसमें आपका ये कलर भी ऐड हो जा रहा है, तो ये बहुत हार्मफुल हो जाता है आगे। और इसमें आपको केवल कुछ नहीं मिलता, अभी मैं कुछ दिनों पहले एक न्यूज रिपोर्ट भी मैंने देखी थी जिसमें हॉर्लिक्स हो गया, बॉर्नवीटा हो गया, इनको CNBC न्यूज उसने इसको हाईलाइट किया था कि ये जो चीजें हैं इनमें जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो 0 है, जो कि जैसे हॉर्लिक्स बोलता है कि हाइट बढ़ाता है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, लेकिन नहीं, वो केवल आज के टाइम पे शुगर को बढ़ा रहा है, ये न्यूज वालों ने हाईलाइट किया था। नेक्स्ट आता है नेचुरल आर नाउ रिप्लेस्ड बाय सिंथेटिक फ्लेवर मटेरियल। यही मेरा कहना है कि जो नेचुरल है वो हार्मफुल नहीं है, लेकिन आजकल नेचुरल का यूज हो ही नहीं रहा है, नेचुरल की जगह सिंथेटिक ने ले ली है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, मैंने स्पेशली मोनोसोडियम ग्लूटामेट को इसलिए यहाँ पे वो किया है ताकि इसको ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ें और ज्यादा से ज्यादा लोग इसके बारे में जाने। Monosodium glutamate is a white solid. It possesses little flavor of its own, but it can bring out the flavor of foods. It is therefore a flavor enhancer. अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसका अपना टेस्ट उतना नहीं होता है जितना ये दूसरे फूड का जो फ्लेवर होता है उसको बढ़ा देता है। ठीक है, तो आजकल इसीलिए चाहे चाउमीन हो गया, चाहे मोमोज हो गए, चाहे सूप हो गए, उन सब में इसको यूज किया जाता है। इसके साइड इफेक्ट्स है हेडेक, वीकनेस, नोजिया, मैक्सिमम लोगों को ये चीजें मिल रही है। altered heart rate, a burning sensation in the forearm. ये मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था कि मेरे पास लाइव एग्जांपल आया था कि a burning sensation in the forearm, सारी वो रिपोर्ट कर चुकी थी लेडी, चाहे वो शुगर हो, चाहे वो अपने मिनरल्स का चेक करवाना हो, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का चेक करवाना, वो सारा कर चुकी थी, लेकिन कोई भी वो नहीं था। लास्ट में यही पता चला कि ये सब चीजों का यूज से ही ये प्रॉब्लम आ रही थी। तो बर्निंग सेंसेशन इन द फोरआर्म एंड बैक ऑफ नेक, tightness in the chest. Next है neonatal exposure is linked to stunt growth and obesity due to reduction in release of growth hormone. तो growth hormone को भी रोकता है, थायराइड को भी ये इनहिबिट करता है, थायराइड के कारण भी बहुत सारी चीजें जो आगे है जो मेनली लेडीज में आजकल देखी जा रही है। ऐसा नहीं है कि मेल में नहीं है, मेल में भी सेम है, लेकिन लेडीज में इसलिए देखी जा रही है क्योंकि यहाँ पे जो फर्टिलाइजिंग वो हो जाता है, एग और ओवा वाला सिस्टम हो जाता है, वो लेडीज का मेनली जो चलता है वो थायराइड से चलता है। थायराइड एक मेटाबॉलिज्म के उसमें भी आती है, इसलिए मेनली लेडीज को प्रॉब्लम आ रही है। नेक्स्ट स्लाइड, एंटीऑक्सीडेंट। अच्छा, ये फूड एडिटिव्स की बात हो रही है अभी, तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट है, तो एंटीऑक्सीडेंट भी आजकल बाहर से डाले जा रहे हैं। बाहर से क्यों डाले जा रहे हैं? इंपॉर्टेंट रीजन इज द सर्टेन विटामिन्स एंड वेरियस अमीनो एसिड कैन इजीली बी डिस्ट्रॉयड बाय एक्सपोजर टू एयर एंड एंटीऑक्सीडेंट सर्व टू प्रोटेक्ट देम। ठीक है, तो इसलिए ये बाहर से डाले जाते हैं। बहुत सारी चीजें आपने देखी होंगी जो उसमें लिखा रहता है ये एंटीऑक्सीडेंट है। आजकल मैं देख रही हूँ कई मेडिसिन भी आ रही हैं जिनको आयुर्वेदा के नाम पे मेडिसिन आ रही है जिनमें सिंथेटिक एंटीऑक्सीडेंट मिलाए जा रहे हैं, लेकिन ये हार्मफुल है क्योंकि उनका एक लिमिटेड टाइम होता है, एक लिमिटेड क्वांटिटी होती है जो करनी चाहिए, लेकिन लोग आयुर्वेदा के नाम पे इन चीजों को ले रहे हैं। नेक्स्ट, इसके साइड इफेक्ट्स है हाइपर एसिडिटी, अस्थमा, एंजियोडिमा, राइनाइटिस, अर्टिकेरिया और मे अफेक्ट एस्ट्रोजन लेवल। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें मिलती हैं। आजकल आप देख रहे होंगे अर्टिकेरिया बहुत कॉमन है, अस्थमा बहुत कॉमन हो गया है, हाइपर एसिडिटी तो बहुत कॉमन है, बहुत ज्यादा कॉमन है। नेक्स्ट, इमल्सिफायर, स्टेबलाइजर, जेलिंग एजेंट। ये क्यों यूज किए जाते हैं? कि मिक्स करने के लिए यूज किए जाते हैं ताकि आप जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, अगर सपोज आपने पानी भी यूज करना है, ऑयल भी यूज करना है, तो आप उसको अगर एक साथ यूज करोगे तो वो एक साथ मिक्स नहीं होंगे। ठीक है ना, तो उनको मिक्स करने के लिए ये इमल्सिफायर यूज किया जाता है, ये स्टेबलाइजर यूज किया जाता है, या जेलिंग एजेंट यूज किए जाते हैं। इनको यूज करने के कारण क्या होता है कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो जब हम उसको प्रेजेंट करते हैं तो वो अच्छा दिखता है, वो ऐसा नहीं दिखता है कि उसमें पानी अलग दिख रहा है, ऑयल अलग
नहीं होता, वो मिक्स में दिखेगा। इसी तरीके से जो स्टेबलाइजर है वो उस इमल्सिफाई जो ऑयल है और ऑयल और वाटर है उसको जब हमने उसमें इमल्सिफाई करके उसको मिक्स कर दिया है तो उस इमल्सिफायर को स्टेब्लिश करना है, उसको देर तक रखना है। उसमें स्टेबलाइजर भी मिलाया जाता है और साथ में जिलिंग एजेंट्स भी मिलाए जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अब आता है पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर। ठीक है, इसकी बात करते हैं कि पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर। पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर एक ऐसी चीज है कि आजकल बहुत कॉमन चीज हो गई है। ये इसलिए कॉमन हो गई है कि हमारे फार्मर्स उनको अपना क्रॉप यील्ड बढ़ाना होता है, उनको ये चाहिए कि क्रॉप बहुत सारी हो या अच्छा पैदावार हो, जिसके कारण वो क्या करते हैं, पेस्ट को मारने के लिए पेस्टिसाइड का यूज करते हैं, वीटिसाइड का, फर्टिलाइजर का यूज करते हैं, जो कि ग्रोथ अच्छी हो, क्रॉप अच्छी हो, जिसकी वजह से वो अच्छा मुनाफा कमा पाए। लेकिन ये हमारी बॉडी को कितना हार्म कर रहा है ये उन्हें इतना नॉलेज नहीं होता है, या नॉलेज होगा भी तो वो जानबूझ करके इस चीज को करते हैं। तो पेस्टिसाइड क्या चीजें हैं ये आप पढ़ते हैं। पेस्टिसाइड आर सबस्टांसेस यूज्ड टू प्रिवेंट, डिस्ट्रॉय, रिपेल और मिटिगेट एनी पेस्ट ranging from insect, animal and weed to microorganism. Example है इसका ऑर्गेनोफॉस्फेट, कार्बामेट, पायरोथायराइड। जो हमने थर्ड ईयर वाले बच्चों के उसमें है ये सारी चीजें, तो इन्होंने ये सारी चीजें पढ़ी होगी। इफेक्ट्स क्या क्या आते हैं, नोजिया, एब्डोमिनल क्रैम्प, dizziness, anxiety and confusion, respiratory सारी, अभी इतने सारे मैंने आपको साइड इफेक्ट्स बताए, हार्मफुल इफेक्ट बताए हैं। आपके ही आस पड़ोस में आप अगर नोटिस करोगे तो मैक्सिमम लोगों को ये प्रॉब्लम्स आती है। आपके लिए डायरिया बहुत कॉमन है, नोजिया बहुत कॉमन है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स बहुत कॉमन है, इवन स्किन कंडीशंस जो आजकल हो रही है ये बहुत कॉमन है, मिसकैरेजेस ये बहुत कॉमन है। तो ये सारी चीजें बच्चों हमारे लाइफ स्टाइल की वजह से ही हुए हैं, हमारे फूड इनटेक की वजह से ही हो। नेक्स्ट टाइम जब भी आप बाहर खाना खाने जाओ या बाहर से कोई प्रोडक्ट लोगे तो खाने से पहले जरूर सोचना, खाने से पहले जरूर देखना, हेल्दी खाओगे, हेल्दी रहोगे, बॉडी हेल्दी रहेगी, माइंड हेल्दी रहेगा। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। थैंक यू बच्चों, बस ये यहीं तक वो है, मेरी प्रेजेंटेशन यहीं तक थी। तो आप लोगों को होप कि आप लोगों को जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने दी होगी वो यूजफुल रहेगी आप लोगों के लिए भी और औरों के लिए भी। और भी अगर किसी को इसमें क्वेरी होगी तो वो डॉक्टर अनुपमा से बात करके उनसे क्वेश्चनिंग करके वो मुझे आगे फॉरवर्ड कर देंगी, तो मैं उसका आंसर उन्हें पहुंचा दूंगी। ठीक है, thank you so much again. Thank you to chairman sir, principal ma'am and vice principal sir and all the organizing committee of Agartantri department. Thank you ma'am, thank you. Thank you, ma'am. This was very interesting topic. I hope all enjoyed this lecture. Thank you for your precious time. And thank you everyone for your presence. With this, we are concluding today's session. Thank you.